But again, even for AFI, you have percentiles, and you can use that to tell you where your AFI values are. And if your AFI is low, you should probably move to maximum vertical pocket instead of AFI, because in late pregnancies and in low AFI volumes, AFI MVP tends to give you better results than AFI. जी जी हाँ जीपीज ने किए होते हैं अल्ट्रासाउंड्स, तो उनके पास भी तो उसकी ईडीडी आ रही होती है एट 14 वीक्स एंड 20 वीक्स, बट यूजुअली वो उस पर नहीं लिखते। तो जब हम गायनाकोलॉजिस्टों के पास वो पहुंचते हैं तो उन पर ईडीडी नहीं होती लिखी हुई, और उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। और सर एक और भी होता है कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है फुल टर्म के ऊपर डिलीवरी के टाइम पर। तो आई शुड से कि सबको उस पर लिखनी चाहिए कि बेबी की पोजीशन एंड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट द नेक। तो ये तो बहुत एक्सपर्टीज इसके लिए नहीं चाहिए, तो अगर वो लिख के दे देंगे तो उनको उसके लिए आसानी हो जाती है। मेरे ख्याल में आपकी पहली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उसके पास डेटा नहीं है, रिलायबल डेटा नहीं है, तो आपके लिए दुश्वारी हो जाती है उसको मैनेज करने में। मे बी साइज इज नॉट समथिंग दैट यू हैव, बट you still have Dopplers, you still have CPR, you can use that, you still have Leica. Occipito anterior or posterior, if you ask for it, I'm sure people will do it. For example, there are gynecologists who always ask for cord around the neck. I don't know why, but they do, and I make it a point to give this information to them. So if you start asking for if this occipito anterior or posterior, your whoever is doing your ultrasound will definitely give you this information. Excuse me, sir. जी सर. मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहा हूँ। ये जो पोजीशन ऑफ द ऑक्सीपिट पे बात हुई अभी, पोजीशन ऑफ ऑक्सीपिट एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑन अल्ट्रासाउंड हैज़ नो सिग्निफिकेंस। ये जो पोजीशन है दैट इज़ ड्यूरिंग द लेबर रोटेशन होती है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग व्हेन वी आर मॉनिटरिंग द लेबर। So it is not important to mention whether it is occiput anterior or posterior. Okay, yeah, actually you're right, but there is something which is called ultrasound during labor, and people are using ultrasound to monitor the progress of labor. So you're right that perhaps if we do an ultrasound at 36 weeks or 37 weeks, what we find then might not hold true when labor starts. You're definitely right. But I'm just saying that if somebody asks for a specific information, as service providers to physicians, we are bound to give that. Sir, my question is, you have told the paramount importance of ductus venosus. Would you like to tell me any tip for localizing the ductus venosus in the first trimester? Practice. Any tips, sir? Yeah. Ductus venosus के लिए एक्चुअली आप ductus venosus की सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। FMF की वेबसाइट के ऊपर वो आपको सिखाते हैं कैसे लेना चाहिए, और आप उनको 3 इमेजेस भेजते हैं तो वो आपको सर्टिफाई भी करते हैं, जो हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। एनीवे, ductus venosus फर्स्ट ट्राइमेस्टर में you need to have the fetus face anteriorly. The fetus should not be moving a lot. You need to zoom so that the fetus, thorax and abdomen occupy most of your screen. You need to turn on your Doppler so that you can see the ductus venosus. You need to have an angle as close to 0 as possible, which means that your fetus should be either head side down or standing or lying in a Trendelenburg's position, so that your geometry of the ductus venosus and your ultrasound probe is as close to 0 as possible. And then you turn on your Doppler, and you must remember that ductus venosus is the area with the fastest velocity in that system. So this is the area that always shows elysing. So you put your Doppler gauge there at the area of elysing, and you must remember that you need to reduce your Doppler gate
to as small as possible, because umbilical veins are right there, hepatic veins are right there, and they can contaminate your ductus venosus Doppler, and जो hepatic veins का जो spectrum है, that is right near the baseline. So so it can completely confuse you and make you come to an erroneous diagnosis if you have contamination, if you're not able to recognize contamination from the hepatic veins. Okay? Thank you very much. अच्छा इसको बंद कर जी सर, इसको स्टॉप कर अब दे दो यार, कहाँ है पानी? थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you very much, sir. And very elaborative, descriptive and informative lecture by Vardi Dure Sabi साहब. अब मेरा ख्याल है आपकी एनर्जीज़ कुछ लो होने वाली होंगी, थोड़ा सा आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है. हम टी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बट उससे पहले डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आपको जगा के भेजूँ, ताकि जिसने काफ़ी पीनी है वो चाय ना पिए और जिसने चाय पीनी है वो काफ़ी ना पिए. अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ऑफ साउथ पंजाब और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान साहब और अपने लिए एक ज़ोरदार क्लैप कर दें आप. थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स तशरीफ़ लाते हैं बड़ी दूर से. मैं देख रहा हूँ डॉक्टर फजील साहब एबटाबाद से तशरीफ़ लाते हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग बनती है यकीनन. डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद राव साहब, उन्होंने रौनक बख्शी है हमारी इस कॉन्फ्रेंस को. फजील साहब के फ़र्जंद भी उनके साथ हैं. डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम, उनके लिए भी क्लैपिंग कीजिए. डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान कैसरानी साहब हैं और मेरी डीजी खान की शान दो मिलते जुलते नामों के साथ डॉक्टर शाहीना नजीब और नजमा शाहीन खोसा साहबा, ये दोनों तशरीफ़ लाए हैं डीजी खान से. इसके अलावा डेफिनेटली जो हमारे लीजेंड्स हैं डॉक्टर इमरान वहीद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं. लंच के बाद उनका भी लेक्चर है, उनके लिए भी यकीनन क्लैप होनी चाहिए, वो उस्तादों के उस्ताद हैं. तो अगर कोई नाम मैं भूल गया हूँ तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हमारे सीनियर कोलीग्स जो तशरीफ़ लाए हैं बड़ी दूर से, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं इस अनाउंसमेंट के साथ कि डेफिनेटली मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि ये 3, 4, 5 कंपनियाँ जो हैं जो हमारे तरह के इवेंट को स्पॉन्सर करती हैं, जिसमें सेल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हाई क्यू है, तोशिबा है, टोटल टेक्नोलॉजी है, केयर प्लस है और बायोटेक है. इन सब के स्टॉल्स आप अभी जाएंगे, वहाँ पे विज़िट भी करें, उनकी मशीनें भी देखें, उनसे डिस्कस भी करें और 15 से 20 मिनट की ब्रेक होगी टी. उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे साइंटिफिक सेशन कंटिन्यू करेंगे. काउंटर पे सेल के काउंटर पे ना वो टोकन है, वहाँ से लेना है. हाई क्यू के भी काउंटर से आपने वो टोकन लेना है. अल्ट्रासाउंड वाले साहब ने वो कोई चीज़ खाने की रखी हुई है, इसलिए हमने सिर्फ चाय रखी है, बाकी खाने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा. स्टॉल्स के ऊपर आप विजिट करेंगे, यकीनन आपकी खिदमत करेंगे. हर बंदा वहाँ पे आप जाएं, टोकन भरें, कुरानदाजी भी है, किसी खुश नसीब के इनामात भी निकलेंगे और 20 मिनट बाद इंशाल्लाह वी मीट हियर अगेन. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना अल्ट्रासाउंड फ्री हूँ, सेमिनार फ्री हूँ, तो उसके लिए आप ज़रा सजेशन दें कि कैसे करें, क्योंकि आप फार्मा को आप प्रोटेक्ट करते नहीं हैं, उनकी प्रोडक्ट्स लिखते नहीं हैं. अगर आप लिखते हैं तो मुझे बताइएगा.